أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواس رسول جگر گوش بطول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ان کے کان کے اندر آذان دی اور ان کا نام حسین تجویز کیا لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی شادی کو 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ کسی دربار پہ چلا جاتا ہے وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے تو غلط قسم کی بیانی کرنے والے غلط حساب کر کے بتانے والے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سخت قسم کا کسی نے جادو کروا دیا اگر آپ کالے کپڑے پہننے کی نظر مان لے تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھوں کے اندر اپنی اولاد کو کڑے پہنانے کی نظر مان لو تو آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے آپ اپنے بیٹے کو ہر سال دربار پہ لے کے جاؤ گے ان کی پیشانی دربار پہ جا کے جھکاؤ گے تو اولاد ہو سکتی ہے اگر اس کے چند جملوں کی وجہ سے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر کی مستورات کہتی ہے کہ میں نے اس کی ولادت کے موقع پہ نظر مانی تھی اب تمام منتوں کو پورا کرنا میرے اوپر ضروری ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں آپ علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کے کان میں اذان دی ہے اور یہاں معاشرے کے اندر بیٹے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ پڑھائی کروائی جاتی ہے جو اکثر کلمات شرکیہ استعمال ہوتے ہیں کیا شرکیہ کلمات کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے بعض مرتبہ بچوں کو تعویذ پہنائی جاتی ہیں وہ تعویذ شرکیہ کلمات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے کیا بچوں کو پیدائش کے موقع پہ شرکیہ کلمات استعمال کروائے جا سکتی ہیں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھروں کے اندر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے ہمارے گھر کی مستورات کہتی ہیں لگتا یہ ہے
बच्चे के ऊपर किसी दूसरी मखलूक का असर हो गया, किसी चुड़ैल जिन का असर हो गया, वो है कि ख़वातीन ये कहती हैं कि इसके ऊपर किसी और मखलूक का असर है। हालांकि जब बच्चा पैदाइश के मौके पे रोता है तो उसके ऊपर किसी मखलूक का असर नहीं होता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान बच्चे के करीब आकर उसके कूल्हे के अंदर उंगलियां मारना शुरू कर देता है। शैतान अपना काम करता है, तुम रहमान के बंदे हो, रहमान वाला काम करो। या रसूल अल्लाह हम क्या करें? मेरे पैगंबर ने फरमाया, जब बच्चे की विलादत हो तो उसके दाएं कान के अंदर आजान दो, बाएं कान के अंदर तकबीर कहो। आजान देना तुम्हारा काम है और शैतान को वहां से दूर करना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन की विलादत पर उनका प्यार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कभी रुखसार का बोसा लेते, कभी होंठों का बोसा लेते, कभी गर्दन और नाफ का बोसा लेते, और मेरे पैगंबर हुसैन के जिस्म को सूंघते भी थे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चों से प्यार करना, बच्चों की किस करना समझ में आता है, लेकिन बच्चे का जिस्म सूंघना समझ के अंदर नहीं आता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, जब मैं हुसैन के जिस्म को सूंघता हूँ तो मुझे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इरशाद फरमाया, लोगों, जब तुम छोटे बच्चों को उठा के प्यार करते हो तो बास मर्तबा बच्चे के जिस्म से महक आती है, तुम उसे बदबू न समझना, बल्कि वो तो जन्नत की महक हुआ करती है। हम बास मर्तबा घरों के अंदर बच्चों को उठा के प्यार करते हैं, कोई 1 हफ्ते का बेबी होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, बच्चा बिल्कुल पाक साफ होता है, बच्चे ने पाखाना नहीं किया होता, दूध नहीं निकाला होता, लेकिन जब मर्द हजरात बच्चे को उठा के प्यार करते हैं तो उस बच्चे के जिस्म से महक आ रही होती है। मर्द हजरात ये समझते हैं कि ये तो बदबू है, गंदी स्मेल है, लगता यह कि बच्चे ने पखाना कर दिया, हालांकि बच्चा पाक होता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, बच्चों के जिस्म से आने वाली महक को बदबू न समझना, बल्कि ये तो जन्नत की महक हुआ करती है। इस वक्त जितने भी हजरात मौजूद हैं, हम में से हर बंदा, खासकर जो वालिदैन हैं जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत अता फरमाई, हम जब भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बेटियों से प्यार करते हैं, क्या हमारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है? क्या सुन्नत की नीयत से बच्चों का प्यार करते हैं? अगर आज के दौर में कोई बच्चे का प्यार करता है, बेटियों के प्यार करता है सुन्नत की नीयत से, तो अल्लाह उस पर भी अजर और सवाब अता फरमाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत हुसैन को गोद के अंदर बिठाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसैन के रुखसार का प्यार किया। अकरा बिन हाबिस वहां पे मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भी बच्चों से प्यार करते हैं, आप भी बच्चों से मोहब्बत का मुआमला करते हैं? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बच्चों के साथ प्यार करूं। अकरा बिन हाबिस कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे इतने बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरा, जब तेरे दिल से अल्लाह ने बच्चों की मोहब्बत निकाल दी तो मैं क्या कर सकता हूं? और आज के दौर में हम अपने मुआशरे के ऊपर जब नजर दौड़ाते हैं तो मुआशरे के अंदर हमें बच्चों के साथ प्यार तो नजर आता है, लेकिन बच्चियों की मोहब्बतें कम होती जा रही है। आज किसी नौजवान की शादी होती है तो शादी के बाद सबसे बड़ी तमन्ना और चाहत ये होती है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए, नरीना औलाद पैदा हो जाए। अगर सबसे पहले बच्ची पैदा होती है तो बीवी को तलाक की धमकियां देना शुरू कर देता है, दूसरी शादी की धमकी देना शुरू कर देता है कि मेरे यहाँ बच्ची क्यों पैदा हो गई, मुझे तो वारिस चाहिए था, मुझे जानशीन चाहिए था, मेरे यहाँ ये बच्ची क्यों पैदा हो जाती है। जमाने जहलियत के अंदर जो लोगों की सोच थी, आज वही सोच हमारे नौजवानों के अंदर भी पाई जाती है। हमें चाहिए कि जहां नरीना औलाद को कबूल करती है वहां बच्चियों को भी अल्लाह की रहमत समझ के कबूल किया करे। चंद महीने पहले
मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक वाकया पेश आया, जब किसी नौजवान के यहाँ सबसे पहले बच्ची पैदा होती है तो उस जालिम बाप ने चंद दिन की मासूम बच्ची के सीने में 5 गोलियां उतार दी। जब संगदिल बाप से पूछा गया कि आपने मासूम बच्ची के सीने में गोलियां क्यों उतार दी, तो जालिम बाप कहने लगा, मुझे तो बेटा चाहिए था, मेरी बीवी ने बच्ची को जन्म क्यों दिया, मुझे बच्चियां अच्छी नहीं लगती, मुझे बच्चियां प्यारी नहीं लगती। मैं अपने महबूब की जब जिंदगी की तरफ देखता हूं, मेरे महबूब के यहाँ सबसे पहले बच्ची पैदा होती है जिसे दुनिया ज़ैनब के नाम से याद करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बच्चियों के साथ इतना प्यार था, जब मेरे पैगंबर के पास बेटी चल के आती थी आप खड़े होकर इस्तिकबाल किया करते थे, आप बेटी फातिमा की पेशानी का बोसा दिया करते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह 2 बेटियां अता फरमाए वो उनके अच्छे नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है, अच्छी जगह पे शादी कर देता है, बच्चियों के साथ मोहब्बत का मुआमला करता है। ये बच्चियों के साथ प्यार करने वाला जन्नत के अंदर मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां आपस में मिली हुई होती है। बच्चियों के साथ मोहब्बत करने की वजह से, बच्चियों के साथ प्यार करने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत नसीब होगी। हजरात सहाबे किराम अल्लाह की बारगाह में यही तो दुआ किया करते थे, अल्लाह जन्नत के अंदर पैगंबर की रफाकत नसीब फरमा। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारते थे, जवानी की उम्र थी, अभी शादी नहीं हुई थी, उनके जिम्मे था पैगंबर के लिए मुसल्ला बिछाना, तहज्जुद के वक़्त पानी का लोटा पेश करना, मिसवाक पेश करना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत से इतना खुश हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग क्या मांगता है। सहाबे रसूल ने जब देखा कि दरियाए नबूवत जोश में आ चुका है तो उन्होंने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत के अंदर आपकी रफाकत मांगता हूँ, मैं जन्नत के अंदर आपका साथ मांगता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू जन्नत के अंदर मेरी मईयत चाहता है तो फिर सजदों की कसरत किया कर, नवाफिल का एहतिमाम किया कर, अल्लाह जन्नत के अंदर मेरी मईयत नसीब फरमा देंगे। मेरे पैगंबर ने कितना बड़ा अमल बताया कि नमाजों का एहतिमाम करना, सजदे ज्यादा करना। लेकिन अगर आज के दौर में कोई बच्चियों के साथ मोहब्बत का मुआमला करता है, बेटियों के साथ प्यार का मुआमला करता है, अल्लाह बच्चियों के साथ प्यार की वजह से जन्नत के अंदर महबूब की रफाकत नसीब फरमा देंगे। इस वक्त जितने भी हजरात मौजूद हैं, मैं सबसे एक दरख्वास्त करूंगा, जिनको अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई है, बेटी छोटी है, बड़ी है, कंवारी है, शादीशुदा है, वो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ ये जरूर किया करें, अल्लाह बेटियों के दुखों से महफूज फरमा, अल्लाह बेटियों के गमों से महफूज फरमा। और भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह बहनों के दुखों से महफूज फरमा, अल्लाह बहनों के गमों से महफूज फरमा। ये जो बेटियों के दुख होते हैं माँ बाप को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, बेटियों के गम माँ बाप को अंदर से खोखला कर देते हैं। आज किसी नौजवान की शादी होती है, किसी बात पे बीवी के साथ नहीं बनती तो लम्हों के अंदर तलाक दे के फारिग कर देता है। और जब हम अपने गिरदो पेश के हालात पे नजर दौड़ाते हैं तो तलाक का सिलसिला आम होता चला जा रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते। एक ही मजलिस के अंदर एक ही जगह पे खड़े होके तलाक की गिरदान पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब बात के अंदर गुस्सा ठंडा होता है तो कहते हैं, मौलाना कोई गुंजाइश निकलती है कि बीवी दोबारा घर के अंदर आ जाए। जब एक मर्तबा गुस्से की हालत में 3 मर्तबा तलाक दे दी, बीवी तो फारिग हो चुकी है। इसलिए शरीयत मुतारा ये कहती है कि गुस्से की हालत में अपने ऊपर कंट्रोल रखा करो, गुस्से को पी जाया करो। और जब मैं सैयदना हुसैन इब्ने अली की जिंदगी की तरफ देखता हूं तो मुझे हुसैन की जिंदगी में गुस्से का पी जाना नजर आता है। जो आज सच्चा हुसैनी होगा, जो हुसैन से मोहब्बत रखने वाला होगा, वो बीवी की गलतियों को मुआफ करने वाला होगा, वो भाई को मुआफ करने वाला होगा, आइज़्ज़ा अक़रबा को मुआफ करने वाला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास कुछ मेहमान आए तो आपने खादिम से फरमाया, जाओ शोरबा गर्म करके लाओ। वो खादिम चला गया। जब थोड़ी देर के बाद शोरबा गर्म करके लाया, देख कहीं और रहा था,
जो ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ उसे ठोकर लगी, जमीन पे गिर पड़ा, शोरबे का गर्म प्याला हजरत हुसैन के नाजुक बदन के ऊपर गिर पड़ा, जन्नती जिस्म जल गया। आपको तकलीफ हुई, गुस्सा आया, गुस्से की हालत में गुलाम की तरफ देखा, वो गुलाम समझ गया कि शहजादे की तबीयत में जलाल आ चुका है, हुसैन को गुस्सा आ चुका है। उसने फौरन कुरान पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़, ईमान वाले गुस्से को पी जाते हैं। हजरत हुसैन ने फौरन कहा कज़मतु गैज़ी, जा मैंने गुस्से को पी लिया। उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफीना अनिन नास, ईमान वाले लोगों को मुआफ करते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया अफौतु अनका, जा मैंने तुझे मुआफ कर दिया। उसने आयत को मुकम्मल करते हुए कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन ने फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। हुसैन तो गलतियों को मुआफ करने वाले थे, और आज का नौजवान बीवी को मुआफ करने के लिए शादी की धमकी, उनके साथ मोहब्बत का मामला करना होता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां रुकैया, उम्मे कलसूम, इनका निकाह अबू लहब के दो बेटों के साथ हुआ था। अभी रुखसती नहीं हुई थी। जब सूरतुल लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने बेटों से कहा जाओ जाकर मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अबू लहब का जालिम बेटा मेरे पैगंबर के पास आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास मौजूद थे। वो जालिम मेरे पैगंबर के करीब आके चेहरे के ऊपर थूक डाल देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लिया। उस जालिम ने मेरे पैगंबर की गर्दन में कपड़ा डालकर कपड़े को यूं खींचा, आपका चेहरे अनवर सुरख हो गया, रगे फूल गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतकामी जज्बात का इजहार नहीं फरमाया। जब उस जालिम बदबख्त ने यूं कहा मोहम्मद मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूं, मेरे पैगंबर जलाल में आ जाते हैं और मेरे पैगंबर की जुबान से बद्दुआ निकल जाती है। अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को इसके ऊपर मुसल्लत फरमा दे। मैं उम्मती होने के नाते अपने पैगंबर की खिदमत में अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, ताइफ के मैदान में आपका खून बहाया गया, आपने बद्दुआ नहीं दी। उहद के मैदान में आपके दंदान शहीद कर दिए गए, आपने बद्दुआ नहीं दी। मक्का की गलियों से गुजरते हैं, आपके ऊपर गंदगी डाल दी जाती है, आप बद्दुआ नहीं देते। आप बैतुल्लाह के पास बैठकर, आप मुल्तजम के करीब बैठकर, हजरे अस्वद के पास बैठकर, या रसूल अल्लाह, आप आबे जमजम के पास बैठकर उस जालिम को बद्दुआ देते हैं। अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को इसके ऊपर मुसल्लत फरमा दे। तो मेरे पैगंबर जवाब देते हैं, जी हाँ, ताइफ के मैदान में तो मेरा खून बहाया गया, उहद के मैदान में मेरे दंदान शहीद किए गए, मक्का की गलियों से गुजरता था, मेरे ऊपर गंदगी डाल दी जाती थी, मेरी जात का मसला था, मेरी जान का मसला था। लेकिन यहाँ तो बेटी का दुख आ चुका है। मोहम्मद हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेटियों के दुख मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलाक की वजह से शदीद बद्दुआ देते हैं। हमें चाहिए हम घर वालों के साथ मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारें। जब भी किसी से गलती हो जाए तो हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हुए उसकी गलती को मुआफ कर दिया करें। बास मर्तबा ऐसा होता है कि कोई बंदा गलती की मुआफी मांगने के लिए आता है कि मैं आपसे सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पकड़ता हूँ, लेकिन अगला बंदा मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होता। कहते जा जा मैं तुझसे इंतकाम लूंगा, मैं अपने खून का आखिरी कतरा बदले के लिए बहा दूंगा। वो मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे उम्मती को मुआफ नहीं करेगा उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। कितनी शदीद वईद है। आज हम में से हर एक की चाहत ये है कि क़यामत के दिन पैगंबर के हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब हो जाए। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना फरमा दे, मेरे उम्मती तेरे पास तेरा चच्चा चल के आया था, तेरा मामू चल के आया था, तेरा फलां रिश्तेदार पड़ोसी चल के आया था, तेरे सामने रो रो के मुआफी मांगी, तूने मुआफ ना किया, मैंने दुनिया के अंदर बतला दिया था, जो मेरे उम्मती को मुआफ नहीं करेगा हौज़े कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। जा जा तू जिनकी पैरवी किया करता था, जिनके नक्शे कदम पे चलता था, जा उन्हीं से जाकर पानी मांग ले, मैं तुझे पानी का घूंट नहीं देता।
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حسین کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا، حسین کو دونوں بازوں کے ساتھ پکڑا، پھر حسین کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ حسین کے ننھے منھے قدم میرے پیغمبر کے علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آئے، حسین کا چہرہ میرے پیغمبر کے چہرے کے سامنے آیا۔ میرے پیغمبر نے حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اس واقعے کے اندر میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، کیا ہم اپنی اولاد کو اچھی دعائیں دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یہ دعا دیتے ہیں بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو نیک دعائیں دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لئے اپنی اولادوں کو اچھی دعائیں دیا کریں، بیٹا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، بیٹا اللہ تجھے اپنا عاشق بنا دے، اللہ تجھے اپنا عارف بنا دے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو نیک دعائیں دیتے ہیں، اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے۔ جب ماں باپ بار بار اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں، اللہ اولادوں کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، میرے پیغمبر تیمارداری کے لیے طلحہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے طلحہ کو دیکھا، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوش تھے۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے کہ طلحہ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب طلحہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، تقریباً 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طلحہ کی آنکھ کھلی تو اعزہ اقربا اہل و عیال نے عرض کیا، طلحہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یوں فرمایا ہے۔ حضرت طلحہ نے جواب دیا، اگر میں رات کے وقت دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کے نبی کو میری موت کی اطلاع نہ کرنا، دن کے وقت فوت ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا۔ گھر والوں نے پوچھا طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پیغمبر 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائیں گے، راستے کے اندر یہودیوں کے مکانات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی یہودی نقصان پہنچا دے۔ حضرت طلحہ نے یہ وصیت فرمائی اور اللہ کی شان رات کے وقت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر رات کے وقت نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ اللہ کے نبی طلحہ کی قبر پہ پہنچے۔ طلحہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے پیغمبر کا شاگرد ہے، میرے پیغمبر کا روحانی بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی طلحہ سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ایسی دعائیں دی ہیں؟ آج کا والد غصے میں آتا ہے تو ایسی عجیب دعا دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لان تان کرتا ہے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ماں باس مرتبہ اولاد کو کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتا؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر اس وقت ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، ہائے جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، ہائے بچے نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا۔ میری ماں میرے والد یہ آپ ہی کی تو بد دعا ہے جو آپ نے اس کو بچپن کے اندر دی تھی۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، ماں باپ جب اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔
हमें औलाद को दुआ देनी चाहिए कि बेटा अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए, बेटा अल्लाह तुझे नेकी की जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह औलादों को नेक बना देंगे। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 10 अहादीस याद की है। आज हम अपने घरों पे बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, हमारे बच्चों को एक भी हदीस याद नहीं होती। आज हम बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो बच्चों को बास मरतबा कुरान ही याद नहीं होता। 6 साल का बच्चा कुरान कहां पढ़ता है, लेकिन हुसैन ने पैगंबर के पास रहते हुए 10 अहादीस को याद किया। हजरत हुसैन इब्न अली फरमाया करते थे, मैंने अपने नाना की जुबान से सुना, मेरे पैगंबर ने फरमाया जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसे दे दिया करो। हजरत हुसैन इब्न अली ये हदीस बयान करके फरमाया करते थे, लोगों अगर कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसको नवाजना चाहिए। इसी तरह जब कोई बंदा रब के दर से मांगता है तो रब उसे जरूर अता फरमा देते हैं। एक नौजवान के जिस्म के अंदर दर्द हुआ तो वो किसी अल्लाह वाले के पास चला गया और जाके कहा कि हजरत जिस्म के अंदर दर्द है, आप मुझे दम कर दीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा क्या तुझे दर्द की हकीकत बयान कर दूं? जी हजरत मुझे जरूर बतलाएं। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा दर्द 3 हुरूफ से मिलकर बना है, दाल रा दाल। अगर आखिरी दाल हटा दो तो दर बनता है, पहला दाल हटा दो तो रद बनता है। अल्लाह जिस्म में दर्द देकर बंदों को बतलाना चाहते हैं, अगर तुम अपने रब का दर छोड़ दोगे तो रब तुम्हें अपने दर से रद कर देगा। अगर आज भी इंसान अपने रब के दरवाजे पे आ जाए, अपने रब के दरवाजे से मांगे, जिस तरह हुसैन इब्न अली ने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह आज भी इस उम्मत की दुआओं को कबूल फरमाएंगे। एक अल्लाह वाले के घर में तंगदस्ती थी तो बीवी ने अपने खामन से कहा कि ये तंगदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ कमाने के लिए जाया करो। अल्लाह वाले सुबह सवेरे निकले और शहर के चौक चौराहे के ऊपर जाके बैठ गए। लोगों की मिन्नत समाजत की, कोई भी मजदूरी पे रखने के लिए तैयार ना हुआ। अल्लाह वाले वहां से उठे, मस्जिद के अंदर आए, पूरा दिन इबादत के अंदर गुजार दिया। शाम के वक्त घर चले गए। बीवी ने पूछा मेहनत मजदूरी की है? खावद ने जवाब दिया हाँ आज मैंने बड़े की मजदूरी की है। बीवी ने पूछा मालिक कैसे है? खावद ने जवाब दिया मालिक बड़ा अच्छा करीम और सखी है। कितनी मजदूरी लेके आए? खावद ने जवाब दिया मालिक इतना अच्छा है कि शाम के वक्त मुझे हाथ फैलाते हुए शर्म आ गई, मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। आज की रात सब्र कर लो, गुजारा कर लो, मैं कल जरूर मजदूरी लेके आऊंगा। बीवी ने वो रात भूख की हालत में गुजारी। जब अगला दिन हुआ तो बीवी ने खावद को कपड़े का थैला पकड़ाया कि इसके अंदर खाने पीने की अशिया लेके आना। खावद वो कपड़े का थैला पकड़कर बाजार की तरफ चला गया। शहर के चौक चौराहे के ऊपर पहुंचा। लोगों की मिन्नत समाजत की, खुदा के लिए प्लीज मुझे काम पे रख लो, और मजदूरों को 1000 देते हो मुझे 500 दे देना। लेकिन कोई भी मजदूरी पे रखने के लिए तैयार न हुआ। अल्लाह वाले वहां से उठे, मस्जिद की तरफ चले गए और पूरा दिन दुआ मांगते हुए गुजार दिया। जब इशा की नमाज पढ़ के लोग घरों की तरफ चले गए तो अल्लाह वाले ने मस्जिद का दरवाजा बंद किया, दोनों हाथ रब की बारगाह में बुलंद करके अर्ज किया अल्लाह कल मैंने अपनी बीवी को यह जवाब दिया था कि मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक बड़ा करीम और सखी है। अल्लाह आज तो मेरे पास कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है। अल्लाह मेरी तंगदस्ती को खत्म फरमा दे, अल्लाह मेरी गुर्बत को खत्म फरमा दे। बूढ़ा दुआ करते हुए अल्लाह के सामने रो पड़ा। काफी देर तक रोता रहा, हत्ता कि अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया, फिर घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते सोच रहा था कि कल मैंने बीवी को यह जवाब दिया था, मैं आज बीवी को क्या जवाब दूंगा। सोचते सोचते मकान के दरवाजे पे पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, घर के सहन से धुआं उठ रहा था। जल्दी से मकान के दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला तो खावंद ने बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। बीवी अपने खावंद का हाथ पकड़ के अंदर ले गई। जब खावंद अंदर दाखिल हुआ देख के हैरान रह गया, चावलों की बोरियां भी पड़ी हुई है, आटे की बोरियां भी पड़ी हुई है, घी भी रखा हुआ है, तनूर रोटियों के साथ भर चुका है। खावंद ने पूछा सामान कहां से आया? तो बीवी मुस्कुराते चेहरे के साथ कहने लगी जिस मालिक की तू मजदूरी करता है उसी मालिक ने इंतजाम किया है। खावंद की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने पूछा रोते क्यों हो? तो खावंद ने रोते हुए जवाब दिया मैंने किसी दुनियादार की मजदूरी नहीं की, मैं किसी वडेरे के दरवाजे पे नहीं गया,
میں روزانہ مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے جس پر پروردگار نے آج شام سے پہلے میری غربت کو ختم فرما دیا۔ بیوی کہنے لگی جو لوگ سامان دے کر گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ خامد نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی سامان دینے والے کہہ رہے تھے مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے تو دعا کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے سامان اور مزدوری میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تو یوں نوازتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت حسین تو کربلا کے میدان میں پوری رات دعا مانگتے رہے، لیکن آج کے دور میں امام نماز جمعہ کے بعد لمبی دعا کروا دے تو لوگ چوک چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر امام کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں کہ امام نے دعا لمبی کروا دی۔ آج تو ہمیں تھکا کے رکھ دیا، میرے بازوں کے اندر کندھوں کے اندر درد شروع ہو گیا۔ لمبی دعا مانگنے کا اپنے اندر ذوق پیدا کرے جس طرح حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ سے مانگا تھا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بہت سارے اسباق دیتی ہے۔ اگر انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور کرے، حسین کی زندگی کا آخری سبق یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ جو حسین سے سچا پیار کرنے والا ہوگا وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ حضرت حسین ابن علی کے سامنے کربلا کے میدان میں جب سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ قربان ہو گیا، 18 سال کا خوبصورت علی اکبر شہید ہو گیا، 6 ماہ کا لخت جگر علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم شہید ہو گیا، اون محمد شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، عمر بن علی شہید ہو گئے، عثمان بن علی شہید ہو گئے، عباس بن علی شہید ہو گئے۔ جب سب کچھ لٹ گیا تو حسین اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں مقابلہ کرنا شروع کیا۔ میرے حسین کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے، نیزے کے زخم آئے۔ جب حسین کے جسم سے بات کے اندر جبہ اتارا گیا تو اس کے اندر 70 سے زائد سوراخ تھے۔ جب سواری کے اوپر حسین کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، حسین اپنی سواری سے فرش زمین پہ تشریف لائے، اپنی پیشانی حسین نے زمین پہ رکھ کے کربلا کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے فریاد کی، اللہ دیکھ تو صحیح حسین علی اکبر دے چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین چھوٹی قربانی علی اصغر کی دے چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین اپنا بھتیجا قاسم دے چکا ہے، اللہ حسین کا پورا وجود چھلی ہو چکا ہے، اللہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، بتا اللہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کچھ ہے، آخری وقت کے اندر یہی فکر تھی اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین آخری وقت کے اندر سجدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسین کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق یہی دیتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا وہ حضرت حسین سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا